लैशेज ने सारा काम आसान कर दिया है, उतना भी वर्थ इट मुझे नहीं लगा, बहुत दिल में दुखता है। लॉट ऑफ प्रिकॉशंस कम्स इनटू पिक्चर। फेस वॉश करने में जो प्रॉब्लम होती है, माय गॉड, बिग मिस्टेक फॉर मी, प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube channel. This is Sakshi, Glow Up with Sakshi. So we create a lot of content related to makeup, beauty, lifestyle, food and what not. As you can see, I have not applied any makeup, सिर्फ थोड़ा सा लिप टिंट लगाया है, that is also for fun. And ये वीडियो थोड़ा सा चिट चैट होने वाला है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस अभी तक आपको वीडियो की टाइटल से भी पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। Alright, so we are going to talk about eyelashes and eyelashes extensions. So basically, I just don't want to blabber anything else, and I just quickly want to share what happened when I got eyelashes extension. As you can observe, कि मैंने lash extension कराया, and I've even posted a poll on my Instagram channel where you guys opted that you really wanted to get the real experience of mine and my real POV about the eyelashes extensions. First of all, there are a lot of options on how you can get your eyelash extension done. तो अभी एक तो ये है कि you can buy eyelash extensions from the market and you can stick it temporarily, जो आपका like you can reuse, and some are like मतलब बार बार यूज नहीं कर सकते आप, you can just apply it and then go to the party, attend the event and everything, you come back, you remove it, you clean your eyes and you're sorted. But this is actually a permanent sort of eyelash extension which you can only get done from a professional. So there are two options. You can either choose to go to a salon or a place where they do eyelash extensions. Usually you will not find it on any salons, but you can find it on nail extensions वाली जगहों पर you can easily find eyelash extension का भी option होता है. So there you can visit or you can book a home salon service. आपको Urban Company या फिर Yes Madam पे नहीं मिलेगा, so you will have to talk to salons like जो वो घर पे आके provide कर दे. And I'm sure ये अभी हर cities में available नहीं है, कुछ limited cities में ही है जो professionals घर पर आकर आपको eyelash extensions कर देते हैं. So I recommend if you're going to try it for the first time, do not experiment it. Make sure that you're going to a good reviewed salon. And I was experiencing it for the first time, and someone recommended it to me, and the person who recommended I really trusted somehow. So I ended up calling the person at home. So I got the at home service done. I'm so sorry I was not able to shoot the process because next day I had to travel and I had to do a lot of packing and everything, and a lot of things were going in my head and I couldn't make time to shoot it because it was already a lengthy process for me, and also I was experiencing it for the first time, so I was totally in the dilemma, not had the confidence to actually shoot it, to be very honest. So somehow I got the eyelashes done at home. So first of all, the person will come at home, or even if you're visiting the salon, you'll have to tell them what type of extension you're looking for. So there are, I think, 2 to 3 types of eyelash extensions when it comes to the length of the eyelashes. So medium थोड़े से कराने हैं वो भी आप बता सकते हो. Then you can go with the longer eyelashes as well, like it will look a way lot dramatic. So make sure अगर आप first time करा रहे हो तो dramatic वाले पे तो बिल्कुल भी मत जाना. Go for medium if you want some changes, and if you are someone जिसको changes से बहुत ज़्यादा डर लगता है, then go for बिल्कुल कम से कम वाले extensions, like 4-5 strands से ज़्यादा मत जाना. And strands भी ऐसे नहीं, वो single strands नहीं लगाते हैं, generally वो bulk करके फिर strands को लगाते हैं, तो वो automatically थोड़ा सा changes आपको दिखेगा, उसमें कोई issue नहीं. Well, if you are someone जिसको नहीं पता कि actually में कैसे choose करना है, you can always ask the stylist as well. वो भी आपको recommend कर देते हैं आपका face और सारी चीज़ें देखकर कि आप उसको मतलब मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, because after service भी काफ़ी सारे procedures है जो आपको ध्यान रखने हैं. So stick around to this video till the end and make sure you grab something to eat because ये थोड़ा सा lengthy होने वाला है video. Right, so once the guy came to my place, he asked me कि मेरे को किस तरह के lashes कराने हैं. Plus they also have 2 different types of like the quality of eyelashes. So एक synthetic होते हैं और एक original hair होते हैं. Make sure you always choose the original hair वाला, because synthetic वाले कुछ टाइम बहुत hard हो जाते हैं, clean करना उनको बहुत difficult होता है और वो बहुत ज़्यादा ही fake लगते हैं. So make sure you choose the natural hair वाले eyelashes, and वो भी आपको mostly वही recommend करते हैं. 2 synthetic वाले थोड़े I think cheaper पड़ जाएंगे आपको, but please do not fall for that because you are doing something to your eyes. Do not experiment. So I chose the human hair वाला extensions, plus very like not so dramatic, very medium kind of coverage. So the guy was very polite, everything was good, everything was going good. You just have to make sure कि आपको बिल्कुल eyes नहीं open करना है. दो वो आपको instructions सारे देते हैं. Even I recommend अगर आप उनसे कराने जाओ तो उनसे सारी चीज़ें पूछ लो. Make sure उनको आता हो वो सारी चीज़ें, आप किसी के पास भी जाके मत करा लेना. So ask them few questions, जो भी queries है ask away, don't shy, because you are paying the person. So at the end you can definitely ask जो भी questions आपके मन में है. ऐसा डरना मत कि नहीं यार मैं पूछूंगी तो सोचेगा स्टूपिड है, मुझे आता नहीं है. प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट. जस्ट गो अहेड एंड आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव, बिकॉज बाद में आप उसको फेस करो प्रॉब्लम को. इट्स बेटर यू आस्क इट पहले ही. या सो वहाँ पे आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस उन्होंने बोला फेस वॉश कर लो. सो यू हैव टू क्लीन योर आईज प्रॉपरली एंड मेक श्योर यू ड्राई योर आईज. सो अगर आपके पास मिनी फैन है, यू कैन यूज दैट टू ड्राई योर आईज. टॉल से बहुत ज्यादा मतलब रब मत करना.
करना. प्लस मेक श्योर दैट इफ यू हैव अ ड्रायर लाइक हेयर ड्रायर, उसको थोड़ा कोल्ड मोड पे करके उससे ड्राई कर लेना. बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो eyelash एक्सटेंशन करना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी वेट रहेगा ना तो वो जो ग्लू यूज करते हैं ना वो स्टिक करने में प्रॉब्लम करती है. सो मेक श्योर इट्स कंप्लीटली ड्राई. एंड एवरीथिंग वाज डन. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आईज क्लोज करने को बोलते थे. ही वाज लाइक बिल्कुल आईज ओपन मत करो एंड मेक श्योर कि वो दोनों आईज पे नीचे यहाँ पर ना एक पैच टाइप का लगाते हैं. सो मेक श्योर कि वो एक आईज पे पैच लगाकर आपका प्रोसीजर स्टार्ट ना करे. मेक श्योर वो दोनों आईज पे लगा रहे, अदरवाइज विल एंड अप कीपिंग योर आईज. एक आग तो खुलते जाएगा बार बार. सो मेक श्योर वो दोनों पे आपको क्लोज कर दे एंड यू हैव टू लाइक कीप द पेशेंस. अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको पेशेंस नहीं है, आप आग बंद करके नहीं बैठ सकते हो, तो प्लीज मत कराना, बिकॉज अगर आप बार बार आंख खोलोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. जो ग्लू होता है वो बहुत हार्श होता है कहीं ना कहीं. मतलब even when I'm going to give my पर्सनल ओपिनियन ऑन इफ यू शुड गेट द लैशेस डन और नॉट, तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये जरूर आने वाला है कि उसका ग्लू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज. सो मेक श्योर यू डू दैट. एंड आई हैड टू लाई डाउन ऑन द बेड एंड आई थिंक फिर प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता. यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज एंड सिट. बार बार क्वेश्चन मत करो. जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, बिकॉज जितना ज्यादा पैनिक करोगे आप उतना ज्यादा आपको लगेगा कुछ हो रहा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि कुछ सेंसेशंस मुझे फील हो रही थी, देन आई वुड से कि मुझे ये फील हो रहा था कि वो बार बार मेरे लैशेस कैसे गैप कर रहे हैं किसी ट्वीजर की हेल्प से और वहाँ पे कुछ स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं. दो कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी थी तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अच्छा वो ऐसे सेपरेट कर रहे हैं एंड वो वहाँ पे स्टिक कर रहे हैं. बट ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे पेनफुल प्रोसीजर नहीं रहा. इट वॉज लाइक वेरी ईजी. ऐसा कुछ भी मेरे को फील नहीं हो रहा था कि नो आई कांट सिट एनी मोर या ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. इट वॉज क्वाइट ईजी एंड द गाय हु वाज डूइंग द प्रोसेस ही वाज काइंड ऑफ प्रोफेशनल. तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फील मतलब पता ही नहीं चल रहा था मुझे कोई प्रोसीजर चल रही है मेरे ऊपर. एंड इट वॉज क्वाइट ईजी. वंस यू आर डन विद द प्रोसेस, वो आपको एक फैन देते हैं, मतलब वो खुद भी करते हैं और कुछ देर बाद वो आपको कहेंगे आप फैन से खुद ही कर लो. तो वो फैन से आपको ड्राई करना होता है. अपने आइज को थोड़ा दूर रखकर करना और पास से मत करना, अदरवाइज जलने लगेंगी आंखें. तो थोड़ा दूर से करना, बिकॉज उसमें फ्यूम्स होते हैं. जो ग्लू होते हैं ना उसमें फ्यूम्स होते हैं और वो फ्यूम्स एट द एंड आपको मतलब थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशंस दे सकते हैं अपनी आंखों के पास. सो पैनिक मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि वो जो फ्यूम्स हैं वो ही आपको आइज पे थोड़े से हिट करते हैं एंड वो फैन के हेल्प से वो निकल जाते हैं. मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी प्रॉब्लम उसकी वजह से तो नहीं हुआ. देन मेक श्योर दैट यू चेक कि आपके दोनों आई लैशेस जो हैं वो इक्वल हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार टेक्नीशियंस जो होते हैं वो पीछे की तरफ बैठते हैं, उनको हो सकता है उतना क्लियरली नहीं दिखेगा जितना आपको दिखेगा एंड वो करके चले जाएंगे. यू विल हैव टू वॉच योर सेल्फ. बार बार मिरर में खुद को देखोगे तो आपको बार बार कुछ ना कुछ गलतियां दिखेंगी. सो इट्स बेटर टेक योर टाइम, आस्क द टेक्नीशियन कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ. सो मेक श्योर दैट यू लुक इनटू द मिरर. सो बेसिकली जो भी एंगल चारों एंगल से देख के उसको आप चेक कर लेना कि वो सही आई लैशेस इक्वल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं. बाद में क्योंकि आप बोलोगे तो दे माइट चार्ज यू अगर आप दूसरी सिटिंग पे जाओ और कुछ भी हो सकता है. लाइक सो मेक श्योर कि आप उसी सिटिंग में सारी चीजें अपनी तरफ से सॉर्ट कर लो. मेरे केस में यही इशू हो गया था. मुझे ये वाले जो आई लैशेस थे ये परफेक्ट लग रहे थे, बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए थे एक्जैक्टली. बट ये मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक लगने लग गया था. मैंने उनको बोला भी कि मुझे ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं बट ये मुझे ड्रामेटिक लग रहे हैं. तो उन्होंने बोला मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. तो एट देन वो क्या होता है ना, फिर ये ड्रामेटिक लगने लगता. बट समहाउ आई फेल्ट कि जो साइज उन्होंने इस वाले आइज में यूज किया था उससे थोड़ा बिगर साइज इसमें यूज कर दिया था, उस वजह से ऐसा हो रहा था. बट ही केप्ट ऑन डिनाइंग ऑन इट. आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट. एंड मैंने उनको बार बार ये चीज बोली कि मुझे नहीं समझ में आ रही चीज, मुझे नहीं समझ में आ रही. तो इज लाइक आपने फर्स्ट टाइम कराया है इसलिए आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसे डरे हुए हो. बट ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल है, सही है, इक्वल है, सही है. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड. अब वो बंदा मुझे बार बार मना करे कि कुछ भी नहीं है, सही है, सही है, सही है. लाइक कि ठीक है यार 7-8 साल का एक्सपीरियंस है और आई ट्रस्ट द गाय क्योंकि वो किसी रेफरेंस से आया है. तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रही थी. बट इन माई हेड आई केप्ट दैट थिंग कि नहीं यार ये इक्वल तो नहीं है. एंड इवन दैट गाय वाज लाइक कि अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया तो फिर आपको ये ज्यादा ड्रामेटिक लगने लगेगा और बैलेंस नहीं होगा. तो आई वाज लाइक ठीक है, क्योंकि आई लैशेस का ऐसा होता है ये परमानेंट तो है बट तब तक परमानेंट है जब तक वो ग्लू आपकी आईज बेयर कर सकती है. तो फॉर सम पीपल आपके लैशेस फॉल आउट होने लगेंगे, फॉर सम पीपल इट माइट स्टिक 1 महीने से ज्यादा. सो इफ आई टॉक अबाउट कितने लंबे ये रहते हैं तो उनका कहना है कि आप 1 मंथ तक इसको बेयर कर सकते हो. 1 मंथ तक आपके आई लैशेस पे रहेंगे बट उसके बाद धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग विद मी एज वेल. इट रिकॉर्ड अ वीडियो जब मैंने लैश एक्सटेंशन कराया था, तो डे 1 का जो मेरा एक्सपीरियंस था. तो आई माइट गोना अटैच द वीडियो समवेयर हियर. तो आप देख लेना अगर मेरे पास वो वीडियो की तो मैं जरूर अटैच कर दूंगी. एंड यू कैन सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ. मुझे खुद में फील हो रहा है. मैंने उस बंदे को वीडियो बनाकर भी भेजी. मैंने कहा भैया आपने कर तो दिया है बट मुझे दिख रहा है डिफरेंस और वो बहुत वियर्ड लग रहा है. एंड ना कि सिर्फ मैंने बोला, मेरे भाई ने, मेरी मम्मा ने, सबने टोका कि हाँ देख के पता लग रही है थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है. सो मेक श्योर आप मेरी वाली गलती बिल्कुल मत करना कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे. प्लीज मेक श्योर कि आप उसी टाइम उसको सॉर्ट करा लो, क्योंकि जिससे मैंने कराया था ना वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया था. नेक्स्ट डे आई हैड टू ट्रैवल. तो मैं वेट नहीं कर सकती थी कि वो आके मुझे इसको फिक्स करके जाए 2-3 दिन बाद. तो इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस एट दैट मोमेंट फॉर मी.
वेल लेटर देन दैट आपको उस दिन आपको अपने आईज को वॉश नहीं करना होता है 24 आवर्स के लिए। वो कहते हैं अपने आईज पे पानी मत लगाओ, फेस वेस आपको वाइप करना है, वॉश करना है कर लो, बट आंख पे पानी नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू ड्राई एंड स्टिक टू इट। तो मतलब आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज एक्चुअली द केस, बट अगर उन्होंने कहा है तो वो करना ही पड़ेगा। सो आई रिकमेंड अगर आप फर्स्ट टाइम लैश एक्सटेंशन करा रहे हो 24 आवर्स के लिए आप भूल जाओ कि आपको उसको वॉश करने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट पार्ट। एंड देन दिल ऑल्सो गिव यू अ स्पूली, जो स्पूली ब्रश होता है, I'm gonna attach it over here, उससे आपको बार बार फैन आउट करना पड़ेगा। एंड दैट टू आप बहुत ज्यादा अंदर की तरफ से मत करो, बस ऊपर ऊपर आपको करना होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे से कर दोगे तो वो ग्लू ही बाहर निकल कर आ जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू ब्रश आउट लाइक एवरी 2 to 3 times a day मिनिमम। मतलब सुबह उठो कर लो बिकॉज रात को सोए हो टैंगल हो जाता है, एंड देन रात को सोने से पहले कर लो, दिन में बीच में कभी ऐसे फील हो तो कर लो। सो लेट मी टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द डिसएडवांटेजेस। जो मैंने पहले फर्स्ट डिसएडवांटेज मेंशन किया था दैट वाज द फ्यूम्स। वो थोड़ा हार्श होता है, वो आपके आईज में स्टिंग करना शुरू कर देता है फॉर सम टाइम। तो इफ यू आर समवन जो अपने आईज से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहता है, प्लीज डोंट डू इट। खिलवाड़ की बात नहीं है गाइस, इट्स लाइक यू विल हैव द सेंसेशन, तो फॉर दैट टाइम इट विल टिंगल सो मच कि अनबेरेबल भी हो सकता है फॉर सम पीपल। फॉर मी इट वाज लाइक कि ठीक है मैं जब तक आंख बंद है मेरा, आई वाज वर्किंग आउट, फिर यू हैड टू ब्लिंक इट बार बार सो दैट वो फ्यूम्स बाहर भी निकल जाए। एंड इट वाज क्वाइट अ नॉट वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक हाफ एन आवर में आई वाज सॉर्टेड विद दैट। आधे घंटे लगे तो मेरे आईज को सेटल होने के लिए, एंड या दैट वाज इट। माय सेकंड डिसएडवांटेज वाज कि आई एम समवन हु कीप्स वॉशिंग माय फेस बिकॉज आई एम एक्ने प्रोन स्किन पर्सन। एंड समहाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एन एक्ने प्रोन स्किन पर्सन, बट आई एम समवन जिसने अगर गंदे हाथ से फेस पे हाथ लगा लिया तो आई वांट टू वॉश माय फेस। आई एम समवन हु कांट कीप माय हैंड्स और माय फेस डर्टी फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब मुझे तुरंत वॉश करना है। एंड फॉर मी 24 आवर्स नॉट वॉशिंग फेस वाज अ बिग मिस्टेक फॉर मी। मतलब मुझे बार बार ऐसा लग रहा है पानी, मतलब फेस पे मेरे को पानी मारना ही मारना है, आई कुडंट बेयर इट। बट इफ यू आर समवन लाइक मी तो थोड़ा सा मतलब मेंटल प्रिपरेशन पहले कर लेना। आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि हो सकता है 24 आवर्स तक नहीं करना है पानी चेहरे पे, बट समहाउ इफ यू आर गोइंग टू डू दिस लाइक eyelash extension, try to do it in winter। फर्स्ट टाइम करा रहे हो तब तो विंटर्स में ही कराओ बिकॉज फेस वॉश नहीं भी करोगे तो आपको चल जाता है 24 आवर्स के लिए। सो माई सेकंड डिसएडवांटेज वाज दैट। एंड माई थर्ड वुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट बीइंग इक्वल। जो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो बहुत ही खराब लगता है। या फिर द अदर डिसएडवांटेज कैन बी ड्रामेटिक आईज। अगर आपने फर्स्ट टाइम में भी ड्रामेटिक करा लिया तो भी आपको इशू क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी नॉट गेटिंग इट डन विद अ प्रोफेशनल। तो अगर आपने किसी ऐसे वैसे एरो गैरो से करा लिया है तब भी आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। उसके अलावा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके आईज के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर, लाइक खिलवाड़ नहीं, जो भी आप फैशन कर रहे हो अपने आईज के साथ कर रहे हो। सो आईज कैन बी अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो अंटिल अनलेस यू आर रियली कंफर्टेबल डूइंग इट देन ओनली डू इट, अदरवाइज जस्ट स्किप ऑन दिस थिंग। नेक्स्ट डिसएडवांटेज वुड बी टू एक्चुअली फील अ चेंज। मतलब अब वो बार बार ना मेरे आईज पे नजर जा रही है, बार बार आई एम लुकिंग इनटू द मिरर, बार बार आई एम ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। वो फर्स्ट डे तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है बिकॉज समटाइम्स इट फील्स लाइक कुछ तो है आंख पे, कुछ तो है आंख पे। सो फॉर मी इट वाज नॉट द केस, बट फॉर सम पीपल इट कैन बी कि यार आईज पे कुछ तो है, कुछ तो भारी भारी सा फील हो रहा है। सो yeah, that would be another disadvantage. उसके अलावा brushing it out like every 3 to 4 times a day, वो भी मुझे थोड़ा हेक्टिक सा काम लगता है। इट्स लाइक यार कर दिया खत्म करो, बार बार उसको ब्रश करना ये वो मेरे बस की बात नहीं है। एंड आई थिंक द लास्ट डिसएडवांटेज वुड बी टू एक्चुअली वॉश इट। मतलब इसको वॉश करना इज अ टास्क। मतलब इट इज रिकमेंडेड टू वॉश दिस लाइक ऑलमोस्ट डेली एंड क्लीन करना। एंड फेस वॉश करने में जो प्रॉब्लम होती है, माई गॉड, जब वेन एवर यू स्प्लैश वाटर यू समहाउ पुट योर फिंगर्स ऑन योर आईज टू ड्रेन द एक्स्ट्रा वाटर। वो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट करके आप अपनी आंखें खोल सको, बट इस केस में ऐसा नहीं कर सकते हो। आप अपने आईज पे ज्यादा फिंगर्स नहीं लगा सकते हो, बहुत ज्यादा पानी को तेजी से स्प्लैश नहीं कर सकते हो। नहाते टाइम डायरेक्ट आप पानी अपने फेस पे नहीं डाल सकते हो, शावर या फिर मग से, जो भी आप जैसे भी नहाना पसंद करते हो। सो अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस कम्स इनटू पिक्चर अगर आप eyelash एक्सटेंशन कराते हो, ना कि सिर्फ इंटरनली बट एक्सटर्नली भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। आप बाहर जा रहे हो तो आपको इफ यू आर गोइंग आउटसाइड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग ग्लासेस बिकॉज डस्ट ना आ जाए, कोई चीजें ना आ जाए। अगर आप बाहर से आए हो आपको क्विकली आके यू हैव टू वॉश इट, अदरवाइज डस्ट वहां पे जमना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज जो मुझे सबसे बड़ी लगती है दैट इज द फॉलिंग ऑफ इट। अब आप देख सकते हो कि समहाउ यहाँ से फॉल आउट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से फॉल आउट स्टार्ट हो चुका है, तो वो बिल्कुल ही अलग से दिखने लग गए हैं कि मतलब मेरे eyelashes फॉल आउट हो रहे हैं एंड अनइवन लगने लगते हैं। लुक्स सो अनइवन, यू गाइज जस्ट लुक एट दैट। अभी लेट्स टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस। अगर आप वो इंसान हो जिसको कराना है, बहुत मन है यार, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इसको करना ही एक्सपीरियंस, यू डेफिनेटली कैन गो फॉर इट। मैं मना नहीं करूंगी। मतलब आई हैव अ मिक्स ओपिनियन अबाउट एक्सटेंशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई गॉट दिस डन लास्ट मंथ, आई थिंक अराउंड 7th or 8th of March, and this is like 27th of March जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आई थिंक आई हैव like had it for around 15 to 20 days. So I think अभी फॉल आउट होना स्टार्ट हो गया है एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आई थिंक वो
सारी चीज़ें जो बची हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगी. सो जो फॉल आउट है ना वो बहुत अनप्लीजेंट होता है, बहुत दिल में दुखता है कि यार इतने पैसे देके कराए और अब ये फॉल आउट होने शुरू हो गए. सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल. तो अगर आपको कराना है तो सबसे पहले एडवांटेज मैं ये बताती हूँ, यू विल हैव टू स्टॉप यूजिंग मस्कारा. सो वो एडवांटेज ले लो या डिसएडवांटेज ले लो, जो भी बात है, बट कहीं ना कहीं यू विल स्टॉप परचेजिंग मस्कारा फॉर लाइक अ मंथ और सो. मतलब ये लगे होते हैं तो आप ना तो मस्कारा यूज भी नहीं कर सकते, तो वो डिसएडवांटेज है. और एडवांटेज ये है कि अगर आपको मस्कारा लगाना नहीं पसंद है तो नहीं भी लगाना होगा. और अगर आपके लैशेस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी छोटी है, तब तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस होने वाला है. आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लैश एक्सटेंशन कराते हैं. नॉट जस्ट द कॉन्टेंट क्रिएटर्स, ऑल्सो पीपल इन रियल लाइफ आई हैव सीन. आजकल कोई भी करा के चल रहा है. बेसिकली दैट वाज माई जस्ट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज यू कैन सी एट द एंड आपका फेस पूरा ब्राइट अप हो जाता है, बहुत प्रिटी लगता है. तो अगर मुझसे आप पूछो कि मैं ये दोबारा कराऊंगी कि नहीं कराऊंगी, आई वुड से आई हैव अ मिक्स ओपिनियन. क्योंकि अभी तो मेरे पास लैशेस अभी मतलब बचे हुए हैं. जब ये पूरे फॉल आउट हो जाएंगे तब मेरी आईज कैसी लग रही होंगी, आई थिंक आई माइट नॉट फील लाइक आई एम नेकेड अराउंड माई आईज. तो अगर कुछ ऐसी फीलिंग नहीं होगी तो आई माइट स्किप ऑन इट बिकॉज समहाउ आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. और वो चीज़ मैं लाइक आई थिंक आई पेड अराउंड 2000-3000 समथिंग फॉर दिस eyelash extension, and it can vary from like starting to 2000 to 10,000 तक के जाते हैं. तो you will have to like bear the expenses. तो मुझे लगता है वो 300 से 400 रुपए की मस्कारा मेरे लिए वर्कआउट करेगी, एंड दैट विल ऑल्सो लास्ट, द मस्कारा विल ऑल्सो लास्ट फॉर मी फॉर लाइक 2 to 3 months. तो आई थिंक अगर एक्सपेंसिव वाइज मैं देखूँ तो दिस इज एक्सपेंसिव और मेंटेनेंस ज्यादा है कंपेयर टू मस्कारा. चीज ये है, आपको आईलाइनर लगाने की जरूरत नहीं लगती है. आई शैडो भी अगर आप नहीं भी करते हो तो भी योर आईज विल लुक प्रिटी AF. तो आई थिंक eyelash extension is actually a good idea, but I would like still look for an alternative जहाँ पर this could long last and as well as इनका maintenance थोड़ा कम हो जाए, because बहुत maintain करना पड़ता है dude. मतलब मुझे लगाए हुए को 15-20 दिन हो गए and still I am very cautious when I wash my face. I'm very cautious when I clean my face, wipe my face. कुछ भी करते टाइम थोड़ा सा cautious होना पड़ता है. Habit पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा था. I think it took me around 5 to 7 days to actually adapt it. But once I adapted it, उसके बाद कोई वैसे generally कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. मतलब इट वॉज ईजी फॉर मी, बट अगेन द होल लॉट ऑफ प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू, वो चीज़ आई थिंक इट्स नॉट वेरी प्लीजेंट. उतना भी वर्थ इट मुझे नहीं लगा. सो आई थिंक इफ यू आर प्लानिंग टू गेट दिस डन यू कैन, बट मेक श्योर जो मैंने चीज़ें अभी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस ऑन दोज थिंग्स लाइक वही आई शैडो, मस्कारा, आई लाइनर, वो सारी चीज़ें. क्योंकि आई टेल यू द डिसएडवांटेज, अगर आपने आई लाइनर लगा भी लिया तो उसको क्लीन कैसे करोगे? एट द एंड आपको वाइप तो करना ही पड़ेगा, एंड दे रेकमेंड यू कांट वाइप इट. तो अगर आप वाइप करोगे तो आपके फॉल आउट्स होने लगेंगे. तो समहाउ यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मस्कारा, आई लाइनर, आई शैडोज, जो भी मैंने मेंशन किए पॉइंट्स. एंड देयर आर एडवांटेजेस लाइक यू विल लुक प्रिटी एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट वर्थ it. मतलब इतने कॉम्प्रोमाइजेस के बाद फिर उसके बाद यू विल ऑल्सो हैव टू मेंटेन एंड एवरीथिंग. सो फॉर मी आई थिंक इट्स अ 70-30 प्रोसेस. 70 बिकॉज आई कांट गेट दिस डन बिकॉज काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही हैं, इवन इंक्लूडिंग माई स्लीप, बिकॉज आप उल्टा नहीं सो सकते हो, बिकॉज आंखें अगर पिलो पे लगेंगी तो भी आपके फॉल आउट्स होंगे. बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड 30% येस बिकॉज इट मेक्स मी फील ब्यूटीफुल एंड नॉट जस्ट द डेज. मतलब मुझे ना कंपेरेटिवली मेकअप भी कम करने की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज मेरी आईज पे इतना टेंशन खराब हो जाता है कि मेरे फेस पे क्या चल रहा है कोई ध्यान भी नहीं देता है. समटाइम आई इवन स्किप ऑन लिप प्रोडक्ट्स लाइक लिपस्टिक्स. मैंने लिपस्टिक्स भी कम कर दिया है. eyelashes ने सारा काम आसान कर दिया है. बट अगेन आई एम समवन हु लव्स डूइंग मेकअप, एंड फिर मैं अगर मेकअप करती हूँ तो वो ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा, विच इज वाई आई एम नॉट श्योर कि स्टिल नॉट श्योर कि मैं सेकंड टाइम कराती हूँ कि नहीं कराती हूँ. बट इफ आई गेट दिस डन आई विल डेफिनेटली share my review. But if you're someone like me जो पहली बार कराना चाह रहा है and you want to experience it, just go ahead and get it done. एक बार कराओगे मज़ा तो बहुत आएगा and it is quite addictive. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये फॉल आउट हो जाएगा तो मेरा बहुत मन करने वाला है सेकंड टाइम कराने का. But again I'll have to look into things, consequences देखने पड़ेंगे because I'm now a content creator and I cannot skip on makeup and creating content for you guys. And somehow वो थोड़ा सा constant मेरे लिए आ जाएगा. एक बार lash extension में start कर दूंगी तो मैं मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊंगी अपने स्किन पे. मतलब like I can't make videos out of it. So I'm not sure. I'm still trying to make up my mind. But yeah, I hope this video was very helpful, and if it was, make sure that you click on the thumbs up so I get notified that yes you guys liked it. And let me know if you guys want more videos like this जहाँ पे मैं अपने experiences share करूँ कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ. Plus make sure that you hit the subscribe button. So make sure to shoot all the questions in the comment section. So I will try to answer them all. कुछ भी queries है, कुछ भी छोटे से छोटा question है, silly question है, just make sure you ask it away. And I am gonna try to answer all of them. कुछ भी FAQs है, just make sure you ask it. And अगर आपको कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होता है, you can DM me on Instagram. I can always reply on my Instagram DMs. Plus, yeah, I think that was it for the video. Make sure that you have subscribed to my channel, and thank you for sticking around. I'll see you next Friday. Bye.